آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کریں ثانیہ گل پلازا کے متاثرین میں امدادی چیک تقسیم جیالے وزیر اعلیٰ نے نئے گل پلازا کی جلد تعمیر شروع اور 2 سال میں تکمیل کی خوشخبری بھی دے دی۔ شاہراہ بھٹو کا بھی 10 مئی کو افتتاح کرنے کا کہہ دیا۔ مراد علی شاہ بولے کراچی میں اس وقت 310 ارب روپے کے ترقیاتی کام جاری ہیں۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ ثانیہ گل پلازا کے متاثرین کے لیے بڑی پیشرفت، متاثرہ دکانداروں کو مالی امداد کی فراہمی کا آغاز، گل پلازا متاثرین میں چیکس کی تقسیم، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بینکویٹ میں تقریب، صوبائی وزراء، کراچی چیمبر کے عہدیداران اور تاجر برادری کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اس موقع پر گل پلازا کے 129 دکانداروں میں 511 ملین روپے سے زائد کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ محمد عمر خان۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کراچی چیمبر کے تعاون سے ثانیہ گل پلازا سے متعلق تمام اعلانات پر عمل درآمد جاری ہے، باقی متاثرین کو بھی جلد ادائیگیاں کی جائیں گی۔ انشاءاللہ آج اس کا پہلا مرحلہ ہے، چیکس دیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں، جیسے یہ پروسیس اور اتنا کوئی لمبا پروسیس اپنیوں کا اصل پروسیس تھا، ان کو حساب لگانا کہ کتنے حق کے کتنے پیسے کس کے ڈیو ہیں، اور اس میں چیمبر والوں نے جو سارا کام کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم باقی بھی جلد ہی دے دیں گے۔ پیسے ریلیز آلریڈی پیسے اویلیبل ہیں، رکھے ہوئے ہیں، ان کو صرف جو کاغذی کارروائی آخری سرکاری ہوتی ہے وہ پوری کر کے دینا ہے۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کراچی میں اس وقت 310 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے جاری ہیں۔ شاہراہ بھٹو مکمل ہو چکا، 10 مئی تک بلاول بھٹو افتتاح کریں گے۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ کوئی اچھا کام ہوا تو دل خوش ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا کر دیا کریں، باقی ادر ٹائمز یو آر فری ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ۔ میں بتاتا شاہراہ بھٹو انشاءاللہ اگلے مہینے کے پہلے 10 دنوں میں ہم اس کا افتتاح کرائیں گے۔ اس موقع پر تاجر رہنما زبیر موتی والا نے تعاون کرنے پر صوبائی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سندھ حکومت نے 7 ارب روپے معاوضے کی یقین دہانی کروائی اور کراچی چیمبر کی 60 رکنی ٹیم اس عمل میں سرگرم ہے۔ میں آپ کا شکریہ یہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کراچی چیمبر پر اپنے بھرپور ٹرسٹ کا مظاہرہ کیا اور ڈے 1 سے آپ نے کہا جی کراچی چیمبر ہی کام کرے گا، اور اس کی تاریخ بھی ہے کہ ہم نے بولٹن مارکیٹ میں بھی ہم نے یہ کام کیا، کوپریٹو مارکیٹ میں بھی ہم نے کام کیا، ٹمر مارکیٹ میں بھی کیا، اور جو ہے نا جہاں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے سندھ کے اندر، اندرونی سندھ اگر فلڈز آئے تو وہاں ہم کھڑے تھے۔ تقریب سے گل پلازا کے متاثرین نے بھی خطاب کیا۔ آخر میں وزیر اعلیٰ سندھ نے وزراء کے ہمراہ چیکس تقسیم کیے۔ کیمرامین حارث رضا کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ گورنر سندھ کا بلو اکانومی سے روزگار بڑھانے پر زور، نہال ہاشمی سے چیئرمین کے پی ٹی شاہد احمد کی ملاقات، سمندری وسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ملاقات میں میری ٹائم سیکٹر ترقی اور سرمایہ کاری کے مواقع پر گفتگو ہوئی۔ ساحلی وسائل سے معیشت مستحکم بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ سمندری وسائل کے استعمال سے معیشت مضبوط ہوگی۔ چیئرمین کے پی ٹی نے ہیوی ٹریفک اور انفراسٹرکچر مسائل پر بریفنگ دی۔ آج سندھ جاوید عالم اوٹو کا اسپیشل برانچ ہیڈ کوارٹر کا دورہ، شرجیل کھرل اور ڈی آئی جی نے استقبال کیا، کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ آئی جی سندھ کو پولیس ڈیجیٹلائزیشن اور جدید نظام سے آگاہ کیا گیا۔ جاوید عالم اوٹو نے ٹیکنالوجی کا استعمال کامیاب پالیسنگ کی ضمانت قرار دیا۔ انٹیلیجنس کلیکشن اور رپورٹنگ مزید مضبوط بنانے کی ہدایت۔ نادرہ شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم، حکام کے مطابق شہر میں 4 میگا سینٹرز کام کر رہے ہیں۔ سرجانی ٹاؤن گلشن اقبال مستقبل میں شروع ہونے جا رہا ہے، جبکہ گلبرگ ٹاؤن، ماڈل کالونی اور کورنگی میں میگا سینٹرز کے لیے زمین آلاٹ ہو چکی ہے۔ کورنگی ٹاؤن کے این آر سی میں 8 کاؤنٹر کر دیے گئے ہیں۔ شہر میں کل 37 این آر سی سینٹرز کام کر رہے ہیں۔ ڈیفنس میگا سینٹرز میں خودکار سسٹم متعارف کروایا گیا ہے۔ نادرہ کی 8 موٹر سائیکل سروس جو شہریوں کی سہولت کے لیے رکھی گئی ہیں۔ شہریوں کے لیے 8 موبائل وین مختص کی گئی ہیں۔ مختلف یونین کا 5 کاؤنٹرز مختص کیے گئے ہیں۔ ہاسپٹل چورنگی این آر سی سینٹر میں 7 کاؤنٹرز کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے سٹی میں سینٹرز قائم کر دیے گئے۔ ہائی کورٹ اور سٹی کورٹ میں این آر سی سینٹر قائم کیا جا چکا۔ گزشتہ دنوں گلزار ہجری سینٹر کا افتتاح کیا گیا ہے۔ نادرہ حکام نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ شہریوں کے لیے پاک آئی ڈی کی بھی سہولت میسر ہے، اس کو استعمال کر کے اپنا وقت بچا سکتے ہیں۔
वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से चीनी कंपनियों के नुमाइंदों की मुलाकात। सूबाई वज़ीर ने कराची समेत मुख्तलिफ अजला में सन सॉलिड वेस्ट का निज़ाम बेहतर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह से चीनी वफ़द की मुलाकात के दौरान शहर में सफाई सुथराई, वेस्ट मैनेजमेंट और शहरी सहूलियात की बेहतरी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और प्रोजेक्ट स्विप के अहदेदारान ने शिरकत की है। इजलास में कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सखर के बाद सुबह सिंध के दीगर अजला में सफाई सुथराई के निज़ाम को मुतारिफ कराने और नई लैंड फिल साइट्स के लिए जगह मुख्तस करने के सिलसिले में बातचीत हुई। वज़ीर बल्दियात ने हिदायत की कि कराची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जाए। एबीसीनिया में सीवरेज का निज़ाम नकारा, गटर का पानी सड़कों पर बहने लगा, शहरी परेशानी का शिकार हो गए। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। शहर में निकासी आब का निज़ाम बदस्तूर तबाह। एबीसीनिया पर सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा, बदबू और तौफान के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर, जबकि सड़क भी टूट फूट का शिकार। शहरियों का कहना है कि ये मसला नया नहीं बल्कि तवील अरसे से बरकरार है, मगर मुतल्लिका इदारे तवज्जो देने में नाकाम दिखाई देते हैं। बस बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है और काफी दफा हमने कोशिश की है कि कोई भी मुतलका बंदा हो जिससे हम मिलके उसे कोई एप्लीकेशन वगैरह दें, ताकि लोग तो यहाँ पे बिल्कुल बोलते नहीं है और आदी हो चुके हैं ना इस चीज का, गंदगी में रहने का। जी ये एक लंबे करना पड़ रहा है, खासकर जैसा कि आप जानते हैं आज जुमे का दिन है तो नमाजी घरों से निकलेंगे जुमा की नमाज अदा करने के लिए, तो जाते जाते पता नहीं बावजू रहेंगे या नहीं, मतलब ये गंदगी से गुजर के जाना और इस तरह बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों और राहगीरों ने हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम से मामले पर नोटिस लेने समेत सीवरेज का निज़ाम बेहतर और सड़क की मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। मोहम्मदी कॉलोनी में बच्चों के पार्क पर गैर कानूनी बाजार कायम, खेल के लिए मुख्तस जगह तुजावजात की नजर हो गई। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। तफसीलात दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट में। बच्चों की हंसी से गूंजने वाला पार्क उजाड़ दिया गया, खेल कूद की जगह गैर कानूनी बाजार में तब्दील, शहरियों का काबजीन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मोहम्मदी कॉलोनी में खेल के लिए मुख्तस ग्राउंड पर जगह जगह ठेले और दुकानें कायम हो गई हैं, जिसके बायस न सिर्फ माहौल मुतासिर हो रहा है बल्कि आमदोरफ्त में भी मुश्किलात बढ़ गई हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि ये पार्क बच्चों के खेलने और शहरियों की तफरीह के लिए बनाया गया था, मगर अब यहाँ बाजार लगा दिया गया है। तो इलाका मकीन काफी ज्यादा परेशान है। उनका यही मुतालबा है कि इस बाजार को फिलफौर खत्म किया जाए। खत्म करने के बाद यहाँ पर जो बच्चों की खेलों की एक्टिविटी है वो दोबारा से बहाल की जाए। मकीनों के मुताबिक बच्चे खेलने से महरूम हो गए हैं, जबकि बड़ों को भी रोजमर्रा आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। एहतजाज में बुजुर्गों समेत बच्चों ने भी शिरकत की और मुतालबा किया कि ग्राउंड को असल हालत में बहाल किया जाए। और ये कोई लीगल बाजार नहीं लग रहा है, इसको इनको चाहिए एग्रीकल्चर वालों से पहले बात करें, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को ब्यूरो ऑफ सप्लाई से राब्ता करें। तो ये बहुत जरूरी है यानी कि जब से हम मोहम्मदी कॉलोनी में यहाँ रहते हैं 50-60 साल से रह रहे हैं, आज तक ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये ग्राउंड को पार्क की शक्ल दी जा रही है। शहरियों का कहना है कि कई बार मुतल्लिका इदारों को शिकायत दर्ज करवाई गई, मगर ताहाल कोई मौसर कार्रवाई सामने नहीं आई। कैमरामैन इमरान AK के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात। आज 9वीं जमात का उर्दू का पर्चा लिया गया। PECHS के एक सरकारी स्कूल में तलबा को तमाम तर सहूलियात फराहम की गई। अगरचे शहर के बाज़ इम्तहानी मराकज़ से नकल के इत्तलात सामने आए हैं, ताहम कुछ मराकज़ ऐसे भी हैं जहाँ सख्ती के साथ निगरानी की गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात PECHS के इम्तहानी मराकज़ में 9वीं जमात का उर्दू का पर्चा लिया गया। इंतज़ामिया की जानिब से तलबा को तमाम सहूलियात फरहामी का दावा किया गया। सख्त निगरानी के बायस नकल के इम्कानात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की गई। असातिज़ा कहते हैं कि इम्तहानी अमल शफ़ाफ अंदाज में लिए जा रहे हैं। हमारे स्कूल में नकल की कोई गुंजाइश नहीं। तलबा को पुरअमन और साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। तमाम सहूलियात मुहैया की गई हैं ताकि वो बेहतर कारकर्दगी दिखा सके। माशाल्लाह से अगर ओवरऑल आप सिचुएशन देखें तो हमारा स्कूल बहुत सारे स्कूलों से कदरन बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब आप देखें यहाँ पे 350 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। बोर्ड ऑफिस से हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें एक्स्ट्रा चेयर्स और टेबल्स भी प्रोवाइड किए और माशाल्लाह बहुत स्पेस है और बच्चे इजीली पेपर दे रहे हैं और हम यहाँ चीटिंग नहीं होने दे रहे। तलबा कहते हैं कि हम अपनी मेहनत से इम्तिहान दे रहे हैं, बस पंखे कम हैं जिसकी वजह से गर्मी लगती है। थोड़ा कुछ गर्मी होता है, इस वजह बस अपने पेपर करते हैं, गर्मी बर्दाश्त करते हैं। इम्तिहानी मराकज़ पर शफाफियत को यकीनी बनाना एक बड़ा चैलेंज ज़रूर है, लेकिन ऐसे इक़दामात जहां तलबा को बेहतर माहौल और सहूलियात फराहम कर रहे हैं, वहीं शहर के बाकी इम्तिहानी मराकज़ में भी
इसी तरह की सहूलियात फराहम कर दी जाएं तो लोगों की शिकायत का अजाला हो सकेगा। मैट्रिक के इम्तहानात का सिलसिला जारी है। आज 9वीं और 10वीं जमात के तलबा से उर्दू का पर्चा लिया गया। 3 घंटे के दौरानिये पर मुश्तमिल इस इम्तहान के लिए इम्तहानी मराकज़ के तरफ सिक्योरिटी सख्त रही और दफ़ा 144 नाफिज रही। राबेल सदीद की रिपोर्ट देखिए। मैट्रिक इम्तहानात आखिरी मराहिल में दाखिल, उर्दू का पर्चा मुकम्मल, नकल की रोकथाम की कोशिशें भी जारी। सेंटर सुप्रिंटेंडेंट के मुताबिक तालिब इल्म को एडमिट कार्ड के बगैर इम्तहानी मरकज में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई, जबकि मोबाइल फोन साथ लाने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद रही ताकि इम्तिहानी अमल को शफाफ बनाया जा सके। इस मरतबा पोर्टल डाउन होने की वजह से कुछ सेंटर्स की तब्दीली एट द 11th आवर की गई है, तो उस सूरत हाल के अंदर हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई। एक टाउन कमेटी का गवर्नमेंट स्कूल है, वो हमारे पास 11th आवर में शिफ्ट हुआ। इम्तिहानी मराकज के बाहर वालिदैन की बड़ी तादाद मौजूद रही, जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दुआ गो नजर आए। तालिबात का कहना था कि पेपर लीक होने की वजह से काफी मुश्किल आती है, जब पढ़ने वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं और नकल वाले बच्चे बाजी ले जाते हैं। मिला था कि आप अपना कॉन्सेप्शनल तैयारी करिएगा, तो हमने वैसी तैयारी करी और नकल का कोई इंतजाम नहीं है उधर, मतलब अपनी मेहनत से करो, अपनी मेहनत से पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी भी अच्छी थी, तो इस वजह से पेपर अच्छा गुजरा और सारी चीज़ें किताब की थी, आसान थी, कॉन्सेप्चुअल भी नहीं था कुछ भी। सवाल जो वही थे लेकिन घुमा फिरा के दिए हुए थे, थोड़ा परेशान हो गए थे, लेकिन उर्दू का पर्चा हमारा बहुत ज़्यादा आसान आया था और अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बहुत अच्छा गया। केमिस्ट्री का भी हमारा बहुत अच्छा गया था। और जहाँ तक बात है सेंटर की मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट यहाँ की काफ़ी अच्छी है, मतलब हमें अभी तक तो कोई भी मसला नहीं हुआ है, सारी चीज़ें बहुत स्मूथली जा रही हैं। वालिदैन का कहना है कि इस बार इंतजामात बेहतर रहे, सहूलियात मुनासिब थीं और इम्तिहानात शफाफ अंदाज में लिए गए। सिक्योरिटी के हवाले से भी वालिदैन ने इत्मीनान का इजहार किया। नहीं, स्कूल के इंतजामात तो बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सिक्योरिटी के हवाले से भी कोई इशू नहीं है। और हमने बच्ची से भी पूछा है, मेरी बेटी पेपर दे रही है, तो इंतज़ाम बहुत अच्छा है और बच्चों का मतलब अच्छे से उनको प्रॉपर गाइड भी किया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक पेपर गाइडेंस की बात करते हैं तो प्रॉपरली हम सब टीचर्स ने गाइड किया है और ये बहुत एक अच्छा स्कूल है और नकल के तो बिल्कुल भी ऐसे कोई इम्कानात नहीं है। बाहर भी प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो मौजूद है। इंतजामिया के मुताबिक नकल की रोकथाम और नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए गए ताकि तुलबा को मुनसिफाना माहौल फराहम किया जा सके। कैमरामैन हारिस के साथ राबेल सदीद, सिटी 21। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फैंसी और जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है, जबकि बगैर नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को जुर्माने के साथ जब्त भी किया जा रहा है। तफसीलात मेराज अख्तर की रिपोर्ट में। कानून तोड़ने वालों की शामत आ गई, फैंसी नंबर प्लेट अब नहीं चलेगी। ट्रैफिक पुलिस ने फैंसी और जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर सख्त चेकिंग का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक पुलिस के हमरा CPLC, ड्राइविंग लाइसेंस विंग, एक्साइज और जिला पुलिस के अफसरान भी कार्रवाई में शरीक हैं। DSP ट्रैफिक पुलिस यामीन गुज्जर का कहना है कि कोरंगी रोड, गुलिस्तान जौहर, नाज़माबाद और दीगर अहम शाहराहों पर नाके कायम किए गए हैं, जहां बगैर नंबर प्लेट, जाली या फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को जब्त किया जा रहा है और मौके पर जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। सर में दर्द तो उसी का है ना, आप अंदाज़ा करें, आप इधर देखें, रोड पर आप भी खड़े देख लेना, जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं ना, सब ने तकरीबन जो है ना 90% उन्होंने सारी नंबर प्लेट वगैरह लगा दी है, जैसे कि बताएगा। लेकिन मोटरसाइकिल वालों ने अभी तक जो है इसके पर अमल नहीं किया। अभी भी 50 से 70% जो है लोगों ने वही नंबर प्लेट को चला रहे हैं। तो ये मुहिम मेरा ख्याल ये है कि उसी की वजह से, ताकि वो जो अभी भी अवेयरनेस उनको ज़्यादा देने की ज़रूरत है और जब तक ये चलान ज़्यादा नहीं होंगे, जब तक उनकी समझ में नहीं आएगा। हुक्काम का कहना है कि कार्रवाई के दौरान मुतादिद शहरी अपनी गलती तस्लीम करने से गुरेज़ा हैं, ताहम कानून की खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सरकारी तौर पर मंजूर शुदा नंबर प्लेट्स आवेज़ा करें और तमाम कागजात हमरा रखें ताकि जुर्मानों और कानूनी कार्रवाइयों से बचा जा सके। कैमरामैन अमजद के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। शायर इस्लाम से मुतालिक केस एडिशनल सेशन अदालत सेंट्रल कराची की अदालत केस की समाअत। अदालत ने यूट्यूबर रजब भट्ट की अबूरी जमानत मंसूख कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज जवाली। कराची में शायर इस्लाम से मुतालिक केस में पेशरफ्त। एडिशनल सेशन अदालत सेंट्रल कराची ने मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट की अबूरी जमानत मंसूख कर दी। अदालत में समाअत के दौरान मुल्जिम पेश न हो सके, जिस पर अदालत ने पेश न होने की वजह पूछी तो वकील सफाई ने
मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रजब भट्ट की तबीयत नासाज है, इसी वजह से वो अदालत में हाजिर नहीं हो सके। वकील मुद्दई ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िम हर पेशी पर गैर हाज़िरी के लिए मुख्तलिफ वजूहात पेश करता है और इस बार भी हाज़िरी से गुरेज किया गया, जिस पर दरख्वास्त की भरपूर मुखालफत की गई। अदालत ने मुल्ज़िम रजब भट्ट की अदम पेशी पर उनकी अबूरी ज़मानत मुस्तरद कर दी। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुद्दई और वकील ने कहा कि मुल्ज़िम ने जानबूझकर अदालत में पेश नहीं होते। रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा थाना हैदरी मार्केट में दर्ज है। कैमरामैन रिजवान के हमरा मुमताज़ जमाली, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने M9 मोटरवे पर कायम मुसाफिर बसों के बुकिंग दफातर सील करने के खिलाफ दायर दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म दे दिया। तफसीलात मुमताज़ जमाली की रिपोर्ट में। M9 मोटरवे पर गैर कानूनी बुकिंग दफातर के खिलाफ बड़ा फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में केस की समाअत जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने की, जिसके बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया। अदालत ने वाज़ेह करार दिया कि सरकारी अराजी को तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करने का कोई कानूनी जवाज नहीं। अदालत के मुताबिक दरख्वास्त गुजार सर्विस लेंस पर गैर कानूनी तौर पर बस अड्डे और बुकिंग दफातर चला रहे थे। कानून के तहत बसें सिर्फ मंजूर शुदा टर्मिनल से ही चलाई जा सकती हैं। फैसले में कहा गया कि रूट परमिट सिर्फ गाड़ियों की नकलो हरकत की इजाजत देता है। इसके तहत बुकिंग ऑफिस या बस अड्डा कायम नहीं किया जा सकता। अदालत ने करार दिया कि तवील अरसे तक जमीन के इस्तेमाल से किसी को मलकियत या कानूनी हक हासिल नहीं हो जाता। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, DIG ट्रैफिक और दीगर मुताल्लिका हुकाम को फौरी तौर पर गैर कानूनी पार्किंग और तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म दे दिया। अमल दरामद न होने की सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई की वार्निंग भी दे दी गई। अदालत ने वाज़ेह किया कि ट्रांसपोर्टर्स मंजूर शुदा टर्मिनल से अपना कारोबार जारी रख सकते हैं, जबकि शहर में ट्रैफिक की बेहतरी के लिए तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुमताज़ जमाली, सिटी 21। ईरानी वफ्द की पाकिस्तान आमद की खबरों ने स्टॉक मार्केट का रुख बदल दिया। मंदी के साथ शुरू होने वाला कारोबार तेजी पर बंद हुआ। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। ईरान के वफ्द की इस्लामाबाद आमद की खबर, मार्केट का मिजाज बदल गया। मंदी के बादल छटे, तेजी का राज। सरमायाकारों का एतमाद एक बार फिर बहाल। दिन भर की मंदी मुस्बत रुझान में तब्दील हो गई। स्टॉक मार्केट के साबिक डायरेक्टर अमीन यूसुफ का कहना था कि तेल की कीमतों में अदम इस्तेहकाम से सरमायाकारों में बेचैनी का सबब है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ यही वजह है खौफजदा है कि लोग कभी वॉर कंटिन्यू तो नहीं होगी, सीज़फायर ख़त्म हो जाएगी तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली आएगा, ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी। और कोई वजह नहीं है। देखिए इकोनॉमी हमारी सही जा रही है, हमारे रिजर्व्स अभी बढ़े हैं, हमारे पास सऊदी अरेबिया से भी पैसा है, हमने UAE को भी पैसे दे दिए, तो आई डोंट थिंक सो कि इकोनॉमी में हमारे कोई इशू है। मेन ऑयल की प्राइसेस है जो हमें कंसर्न कर रही हैं। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाई ने बताया कि रवां साल 7 IPOs मुतवक्के हैं, जिनमें से 2 मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि मजीद 5 होना बाकी हैं। ज्यादा कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज से मुंसलिक होने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में इजाफा होगा। इस साल हमारा 7 IPOs का प्रोग्राम है। 7 में से तकरीबन 2 जो हैं वो मंजराम पे आ चुके हैं, 5 IPOs और होने हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो इंशाल्लाह बढ़नी है। जहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती है वहाँ पर इकनॉमी का पहिया घूमता है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग ही मार्केट कैपिटलाइजेशन का ज़रिया बनती है और इससे जो ना सिर्फ मार्केट में फ्रेश कैपिटल इंजेक्ट होता है, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होती है और मैं समझता हूँ एक ट्रेडिंग पैटर्न भी आ जाता है। तो ये तीनों चीज़ें पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर हैं और जितनी ज़्यादा लिस्टिंग होगी उतना ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट ग्रो करेगी। दूसरे सेशन में ईरानी वफ्द की आमद की खबरों के बाद मार्केट में नुमाया तेजी देखने में आई, जहां 100 इंडेक्स में 2325 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,71,498 की सतह पर बंद हुआ। तज्जियाकारों के मुताबिक मुस्बत मुआशी इशारे और बैनुल अक़वामी रवाबित में बेहतरी सरमायाकारों के एतमाद को मजीद मुस्तहकम कर सकती है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आलमी और मुकामी मार्केट में सोना और चांदी की कीमत में कमी। 1 तोला सोना 2,900 रुपये सस्ता होकर कीमत 4,90,862 रुपये का हो गई। 1 तोला चांदी 142 रुपये सस्ती हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $29 सस्ता होकर $4,685 फी औंस तक गिर गया। इस कमी का असर मुकामी सराफा मार्केट में भी हुआ, जिससे 1 तोला सोना 2,900 रुपये सस्ता होकर कीमत 4,90,862 रुपये का हो गई। साथ ही 10 ग्राम सोना 2,486 रुपये कमी से 4,20,835 रुपये का हो गया है और 1 तोला चांदी 142 रुपये कम होकर 7,997 पर आ गई है।
स्टेट बैंक का अहम मॉनेटरी पॉलिसी इजलास 27 अप्रैल को होगा। मार्केट सर्वे में शरह सूद में इजाफे के इम्कान जाहिर कर दिए गए। 53% माहिरीन ने शरह सूद बढ़ने की पेशगोई की है और अक्सरियत के मुताबिक 50 बेसिस पॉइंट्स तक इजाफा मुमकिन है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। स्टेट बैंक की बैठक में शरह सूद पर बड़ी नजर। शरह सूद बढ़ेगी या बरकरार रहेगी? मार्केट में कयास आराइयां तेज। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अहम इजलास 27 अप्रैल को मुनक्किद होगा, जिसकी सदारत गवर्नर जमील अहमद करेंगे। इजलास में शरह सूद से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। टॉप लाइन सिक्योरिटी रिसर्च के मार्केट सर्वे के मुताबिक 53% माहिरीन ने शरह सूद में इजाफे की पेशगोई की है और अक्सरियत का मानना है कि शरह सूद में 50 से 20 पॉइंट्स तक इजाफा मुमकिन है। सर्वे के मुताबिक 43% माहिरीन शरह सूद बरकरार रखने के हक में हैं, जबकि सिर्फ 4% ने कमी की पेशगोई की। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी कशीदगी और तेल की बढ़ती कीमतें शरह सूद में इजाफे की बड़ी वजूहात समझी जा रही हैं। माहिरीन का कहना है कि आलमी सूरत हाल के असरात मुकामी मईशत पर भी पड़ रहे हैं। मार्केट सिग्नल्स भी शरह सूद में मामूली इजाफे की तरफ इशारे दे रहे हैं। खासतौर पर टी बिल्स और कार्बोरेट्स में तब्दीलियां देखी जा रही हैं। हालिया हफ्तों में बेल्ट्स में उतार चढ़ाव भी रिकॉर्ड किया गया है। तेल की कीमतों के हवाले से 59% माहिरीन का कहना है कि कीमत $80 फी बैरल से ऊपर रह सकती है, जबकि महंगाई और रुपए की कदर के हवाले से भी खदशात बरकरार हैं। माहिरीन के मुताबिक आने वाला मॉनेटरी पॉलिसी इजलास मुल्की मईशत के लिए नहायत अहम साबित हो सकता है। अशरफ खान, City 20।